All right, it's exactly 5 o'clock in the evening. Namaskar, good evening, hello, and welcome to Glip Talk 4.9. Glip Talk 4.9 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. My name is Samrat Ghosh. I'm going to be your host for the evening, as always. Wish you all a very happy Valentine's Day. For the first time ever, I'm doing a Glip Talk on a Valentine's Day because Glip Talk as an initiative, it has started in the month of May last year during the pandemic when the entire world seemed to be crashing down upon us. But that's what apparently has pushed me to do something and pursue my passion probably which I've left 10 years ago. I'm a former radio jockey with Red FM 93.5 in Hyderabad. We're back 10 years. But somehow I left my radio because of certain unavoidable circumstances there in the family. My dad was not in for it, blah, 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 blah. All of you probably know this by now. But yes, it was a blessing in disguise where I've actually thought of doing something which is probably a little uncommon and a little different. Well, देखो सेलिब्रिटी का इंटरव्यू तो हर कोई लेता है, लेकिन एक कॉमनर के लाइफ में और एक कॉमनर की जिंदगी में जितने सारे lessons होते हैं, the learnings, the successes, the failures, I think a lot of us don't know and get inspired or aspired from. So that's what Glip Talk as an initiative is all about. There is no ज्ञान session. हम यहाँ पे कोई PowerPoint presentation नहीं दिखाते हैं. यहाँ पे कोई ज्ञान देता नहीं है. हम सिर्फ एक कॉमनर के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में जानते हैं. And that's exactly what Glip Talk as an initiative is all about. And I am here with you. I have a series of guests who will have come in since May. And today I have my 32nd guest who is with me right from Dehradun. जिनके बारे में मैं जितना भी कहूँ वो कम है. It's absolutely, I don't have words. I mean, हिंदी में अगर कहा जाए, मेरे शब्दकोश में I don't have words even to explain and give an introduction about this personality. He is a stallion. He is a stalwart. He is simply undaunted in his own true demeanor. His cadence and his candor apparently just swayed away a lot of hearts. There are huge fan followers. However, he has started his journey 26 years ago from now. Started his journey as a salesman, apparently, who sold Reebok shoes, being a store manager. Eventually, he started selling audio equipments, one of the renowned brands in the world called Bose, and then selling artificial teeth, eventually moving into the MNCs of the world, which is the G Capital, Global Vantage, Travelport, and then chosen his path from a salesman to an HR professional. He apparently has मैं क्या कहूँ? I mean, I don't really want to keep saying a lot of things, but today is the day I'm actually saying this lot of things. What you get here is apparently right from the bottom of my heart. And he is none other than Mr. Vineet Kamal K. Nayan Panchi. Nami Gafia, you don't have to say a lot of things about him. We will get to know him in a very candid manner because he is there probably in all platforms. He's given his interviews, he's spoken about his life, his journey to a lot of people. But the way we are going to unravel his life is going to be a little different. So for that, you're going to be staying tuned with us for the next 1 hour till 6 o'clock in the evening. Well, जिनके पास Valentine's नहीं है, I think Sunday शाम को 5 से 6 on a Valentine's Day, meeting an amazing personality, I think what more you could ask for or I could ask for that matter. But before we get started, and I graciously introduce you, my guest for the evening, I would like to say that Glip Talk is an initiative which has absolutely grown organically. We have 2 to 3 social media presence. One is on Facebook, one is on LinkedIn. So if you type Glip Talk on Instagram or on Facebook, you will find our pages. आज से 6 महीने पहले, I had 0 likes and 0 followers on my pages. However, with all your blessings and unconditional love and support, I think it has reached certain heights, and उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ. So we have more than 200 people liking this initiative there in the Glip Talk Facebook page, more than 200 people liking it on Instagram, and there are 2 wonderful WhatsApp groups जहाँ पे more than 350 people are supporting this initiative of mine unconditionally. So thank you so very much once again. If you're part of this particular WhatsApp group, I would request you to please stay there and don't leave because we have all our series of guests who are coming in every Sunday from 5 to 6. Different demography, different culture, different country, different facets of life. Well, without not taking any further time, ladies and gentlemen, here I graciously present to all of you my guest for the evening, Mr. Vineet KK Panchi. Good evening, sir. Hello, Samrat. How are you, buddy? How are you doing? Happy Valentine's Day to everyone. Sir, this was the most, मतलब आप वैलेंटाइंस दिन के दिन ना आप हर जगह में इतना अच्छा बोलते हो, आज सिर्फ हलो हलो से काम चला दिया तो नहीं होगा सर. एक मतलब कुछ तो
I thought you ऐसा were है, not. सुनो, तुमने ना बहुत देर से मुझे बहुत सारा चढ़ाया हुआ है. There are a lot of people here on, let me see who's already here. A lot of them, yeah. अरे मेरा मित्र विकास दुआ, how are you, दुआ साहब? Good to see you here. I'm sorry, I'm logged in from the phone. Ina is here. She said she'll be. Partho is here. Moshmi, hi. Hello, friends. So, Gayatri, hi. So good to be here. Just wanted to say hello to everyone here. Sanjay is single. Hi, Sanjay. Kohli Saab, thanks for joining in. Good to see everyone. जी, सम्राट जी, आपका शो है, बताइए, how can I help? I think I have given enough introduction. It जी. would be so nice and good to hear it from your mouth. If you say a little hi, I mean, you already said hi to everyone, but if you just quickly give a brief about yourself, यहाँ पे सब कोई आपको जानते हैं, sir. Everyone knows you. That's the reason I always mention the name is enough. So, यार अपनी इंट्रोडक्शन देना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक तरीका तो ये है कि मैं आपको बताऊं मैंने जी ये किया, और दूसरा ये होता है कि साहब मैंने जीना ना यहाँ से शुरू किया. हम अक्सर एक दूसरे से पूछते हैं आप करते क्या हैं, एंड दैट क्वेश्चन इज somehow really shallow. आप किस किस्म के इंसान हो is a way better question to ask in my opinion than what do you do. What we do is really skill based. What we do is what came to us. What we do is what we were educated. So sales थे या HR थे या क्या करते थे, it's fine. Like everyone has a journey. I think what is more important is what you stand for today. Where do you want to go? And I think that's really what I'd like to focus on Glip Talk. That's exactly what the endeavor is all about. So I was just saying and giving a little background in terms of what you have done so far professionally. So before we get started in terms of, because it's all about knowing you and about your journey, about your successes, about your failures. So, sir, आप कहाँ से हो? I think a lot of us already know that you are from Delhi. देहरादून में हम पले बड़े, हम परवरिश वहीं पे ही, वहीं हमारे पेरेंट्स रहा करते थे. फिर बहुत साल दिल्ली और NCR में काटे, जहाँ पे नौकरियां की. फिर वापस देहरादून चला गया अपने गांव, छोटा सा म्यूजिक स्टूडियो सेटअप करने और फिल्म कंपनी बनाने. एक छोटी सी सोशल एंटरप्राइज बनाई थी जो अब मेरी सिस्टर सारिका चलाती हैं. वो भी शायद एक बार आई थी ग्लिप टॉक पे. So that's really my journey. Continue to travel, continue to live in देहरादून. वापस कभी दिल नहीं है मेरा किसी बड़ी सिटी में जाने का. And I consider myself a hill mountain kind of guy. बाइकिंग करता हूँ, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करता हूँ, थोड़ा सा अभी घूमने फिरने का शौक है. बट रियली माई लाइफ इज नाउ अबाउट राइटिंग, thinking about relationships, especially आज क्योंकि Valentine's Day है, उस पर भी जरूर बात करेंगे. And thinking about how we can create relationships that work. Whether it is spousal relationships, relationships between parents and children, relationships between bosses and subordinates, and so on and so forth. मुझे बहुत रुचि है इस पूरे एरिया में. मैं इसके बारे में पढ़ता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ कि इंट्रोस्पेक्ट करता रहूँ, सीखता रहता हूँ. Really, that is where I see my life going. So relationship, right, especially today on a day like this. And you said, I think in a lot of places that I have heard you saying, be it on your YouTube channels, be it in multiple forums that you have already spoken about. What is the very first thing that comes to your mind when it comes to relationship? They don't work. They're not working. That's the first thing that comes to my mind. अगर relationships काम कर रही होती तो उनके बारे में इतनी बात थोड़ी हो रही होती. हमें बचपन से कभी किसी ने सिखाया ही नहीं. स्कूल में बाकी सब पढ़ा देते हैं, बेसिक चीजें नहीं पढ़ाते कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं. और फिर यही लोग फिर बड़े हो जाते हैं, यही लोग फिर शादियां करते हैं, यही लोग फिर पेरेंट्स बन जाते हैं, यही लोग फिर माँ बाप बड़े वाले बन जाते हैं. और बिकॉज नो वन हैज क्रिएटेड एन इंटरवेंशन जहाँ पे हम लोगों को न सिर्फ रिश्तों का महत्व बताएं, बल्कि ये बताएं कि किस किस्म के लोग आपके साथ चलेंगे, आपकी अपनी पर्सनालिटी क्या है, इस वजह से किसके साथ आपको रिश्ते बनाने चाहिए. अगर कोई रिश्ता काम नहीं कर रहा है तो उसको सुधारा कैसे जाता है, किन वजहों से रिश्ते नहीं चलते हैं. आई डोंट थिंक इट इज पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इट शुड बी. So really, first thing that comes to my mind around relationships, they got to work better. They're not working now. Is it just because of your own experience? Because there are a lot of relationships they actually work on. So I mean, look at a parents' relationship. Of course, naturally. I mean, these are generalizations, and generalizations kind of sound कि अरे किसने कहा नहीं काम कर दी. आप अपने जब आसपास देखेंगे तो बहुत सारा काम बाकी है relationships में. So when I say they are not working, does not mean they are not surviving. But a working relationship is a thriving relationship. A working relationship is in which two people are constantly supporting each other and are invested in ways by which all of them grow. That is what I call a working relationship.
वरना सर्वाइव तो हम सारे ही करते हैं, बट अपने आसपास देखो जितने शादीशुदा लोग हैं, आसपास देखो जिनके लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप है, आप उनसे साथ में पूछोगे तो सारे कहेंगे काम कर रही है, किनारे पे जाके पूछो, फिर हल्के हल्के सब अपने दोस्तों को बता दें, "हाँ यार ये कि नहीं सोचा चल ये रहा था, है। हो ये रहा है।" तो तो दैट इज व्हाट आई कॉल तो इट। इज इट जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट अल्ट्रा मॉडर्निज्म फैक्टर दैट हैव जस्ट गॉटन इनटू आवर हेड बिकॉज़ हमारे पास इतने सारे रिलेशनशिप्स हैं निभाने के लिए। एक हो गया सोशल लाइफ, एक हो गया मतलब टिपिकल एक्वेंटेंसेस, एक हो गया दोस्त, ऑफिस हो गया। परिवार में हम उतना टाइम आजकल के ज़माने में शायद नहीं दे पाते हैं, जिस तरीके से हमें देना चाहिए। तो हुँ। आप जो यू आर अ ट्रू एडवोकेट एंड यू से दैट रिलेशनशिप शुड वर्क एंड वी शुड इन्वेस्ट in terms of learning and nurturing relationships. What is your own personal experience from the relationships that you have had in your life? क्या आप अपने रिलेशनशिप को सही तरीके से हैंडल कर पाए हो? कहीं पे आपको लगता है क्या आपकी तरफ से कहीं खामियां थी जिसकी वजह से certain relationships they didn't work in your life? नेचुरली नेचुरली मैंने जिस तरह आपसे कहा कि हमें किसी को सिखाया नहीं गया कि रिलेशनशिप कैसे चूज की जाती है, कॉन्शियसली आप एक पार्टनर कैसे चूज करते हो। किसी ने कभी ये नहीं बताया कि सब हमारी फिल्मों में हम दिखाते हैं कि लोग फाइनली आके मिल गए हम्म, और वहां पे हमारी फिल्म खत्म हो जाती है। अरे रिलेशनशिप तो वहां से शुरू होती है ना। तो अल्टीमेटली आज तक किसी ने ये फिल्म नहीं बनाई कि यार एक शादी हो गई, उसके बाद इन्होंने अगले 30 साल कैसे गुजारे, उस पे फिल्म कौन बनाएगा, तो बड़ी बोरिंग होगी। right. रिलेशनशिप एज अ सब्जेक्ट इंट्रिंसिकली इज वेरी वाइटल बट इज वेरी बोरिंग, क्योंकि Right. इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इसमें वैलेंटाइंस डे का रोमांस है लेकिन वो बहुत कम है, उसकी वजह से रिलेशनशिप नहीं चलती। तो हम्म, नहीं, आई हैव लर्न थ्रू माय रिलेशनशिप्स, आई हैव मेड इनफ मिस्टेक्स टू रियलाइज कि इस बारे में कुछ मुझे करना चाहिए। जब मैंने खुद रियलाइज किया तो मैंने कहा यार इससे तो बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है। अगर मुझे ये बात समझ में आने लग गई है तो अगर मैं इसको समझाने लगूंगा और स्ट्रक्चर देने लगूंगा तो और लोगों का भी भला हो जाएगा। तो दैट्स रियली माय जर्नी नाउ। so when you are actually have gone through certain phases in your relationship, I'm not हम्म। trying to be absolutely personal out here. I'm just trying to learn यू आर certain यू आर things. यू आर ऑफ कोर्स यू आर। वो तो मेरे को पुश बैक करना पड़ रहा है, तुम तो बहुत पर्सनल हो गए, पर पूछो। मैं आई कैन फील दैट। No, I'm just saying that uh, अगर कोई भी रिश्ता आपके जीवन में अगर फेल जी हुआ है, तो जी। उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हो? अपने आप को मानते हो? और इज इट एन इक्वल शेयर फ्रॉम द अदर पर्सन आल्सो कि इट इज इतना म्यूचुअल? इतना सिंपल होता कि रिश्ता अगर नहीं चला तो जी फटाफट बताओ कौन है ब्लेम करने वाला, इतना आसान होता तो यार फिर तो एक बिठाओ और आपस में ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, इतना आसान कहाँ होता है। हमारे रिश्ते क्यों नहीं चलते इस पे बात हो सकती है, लेकिन हुँ, किसकी वजह से नहीं चलते, आई थिंक रेट्रोस्पेक्टिवली ये कहना कि किसकी गलती थी, आई थिंक इट्स अ लिटिल अनफेयर। व्हाट ओके। इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन इज कि ये रिश्ता जिसमें आप गए थे, क्या आपको उस रिश्ते में जाना चाहिए था, पहली हुँ, चीज। हुँ, अगर आपने फिर कॉन्शियसली वो रिश्ता चूज किया तो आपको ऐसे कौन से रूल्स बनाने चाहिए थे, ऐसी कौन सी बाउंड्री सेटिंग करनी चाहिए थी, ऐसी कौन सी एक्सपेक्टेशन सेटिंग करनी चाहिए थी किसी भी रिश्ते में जाने से पहले। और मैं बार बार लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप जो कि कई बार शादी होती है कई बार नहीं होती है, उसको एक प्राइमरी रिश्ता मान रहा हूँ, बाकी सारे भी रूल्स वैसे ही अप्लाई करते हैं। लेकिन ये काम क्यों नहीं करते हैं, ये इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। पहली चीज, हमें नहीं मालूम कि हम एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप के लिए तैयार भी हैं नहीं। हुँ, हमारे एक तो उम्र बेस्ड शादियां होती हैं, राइट। फिर उसके बाद उम्र बेस्ड शादियां होती है तो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, शादी होगी उसके बाद बच्चे होंगे, उसके बाद तुम्हारा जीवन शुरू हो जाएगा, उसके बाद लोन शुरू हो जाएंगे। तो किसी को मालूम ही नहीं है कि आर यू रेडी, एंड नोबडी इज बीन taught to be self aware to the point where you say, hey, am I ready for this kind of a responsibility, am I ready for another person? Once you get into that relationship, then are you ready for children, are you ready for taking it, what are the kind of challenges that will come? So ऐसा नहीं है कि रिश्ते काम नहीं कर सकते, रिश्ते बहुत अच्छे से बखूबी काम कर सकते हैं, बशर्ते हमें ये पता हो कि ए किस तरह के शख्स के साथ आपको रिश्ता बनाना है, और दो दोनों को मिलके ऐसी कौन सी चीजें करनी है जो कि प्री गेटिंग इनटू दैट रिलेशनशिप, when you're getting into that relationship, and what are the sustenance modes in which relationships thrive. And that is the education one needs. तो तो इसका कोई सक्सेस मंत्र तो ऐसा कुछ फॉर्मूला तो है नहीं सर, राइट? नहीं तो है, रिले है हमने ओके। गौर नहीं किया, हमें हुँ, सिखाया नहीं जाता। और क्योंकि स्ट्रक्चर में लोग काम नहीं, देखिए आपको जब इश्क होता है तो ऑब्जेक्टिविटी गोज आउट ऑफ द विंडो। हुँ, आप जो मोहब्बत में पड़ा हुआ है, वो वैलेंटाइंस डे वाले दिन बड़ा अजीब लगता है बोलना कि यार दिस होल रोमांटिक फीलिंग जो है ना ये बड़ी जल्दी चली जाएगी, असल में ये काम नहीं आती है, काम बेटा रूल आते हैं। ये कौन सुनेगा?
You know, when I was 21, if you were to tell me, you know, don't feel what you're feeling because of the running hormones and you should really be objective about it, I'd bloody throw you out of the room and say, अरे क्या पागलों वाली बात कर रहा है, मुझे इश्क हुआ है तो मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा है. नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम घरों में ये बात करनी शुरू कर दें, अगर हम डाइनिंग टेबल पे ये बात करनी शुरू कर दें, अगर हम अपने बच्चों को शुरू से बताएं कि बेटा, whilst I understand that you know this is happening, there are certain things you might want to look for. दूसरा, in the kind of conservative blame based society, shame based society that we live in, लोग क्या कहेंगे वाली जो सोसाइटी हमारी, हम गाड़ी तो साली टेस्ट करके लेते हैं यार, लेकिन किसी के साथ हमारे यहाँ शादियां करवा देते हैं बगैर यू नो समझे बुझे. टू, we are also not you know aware कि it is okay for you to get into a relationship. If you don't like someone, move out quickly. We just say, you know, this is what it is. So it's not such a simple matter. There's so many facets to what we are discussing. So what are the facets you would have to, if you had to really tell today's generation or people like us who has seen certain stages in our life, been through it, what would be your suggestion कि एक relationship को successful रखने के लिए, and also to keep the sustainability, ensuring that the relationship stays, you know, there are bits and pieces where we have a set of differences, we fight over little things or whatever it is. It could be with a friend also, for that matter, that Absolutely. you know, it could be with our bosses, it could be with our colleagues, it could be with anybody for that matter. So what are the probably few things that you would like to suggest any one of us or anybody in this world that ये पहला दो तीन चीज आपको देखना ही है? पहली दो तीन नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक मॉडल छोटा सा समझा सकूं. एंड दिस मॉडल आई हैव अडैप्टेड फ्रॉम this psychologist called Neeti Gupta. She's a Singapore-based psychologist. She has a very simple 7-step model. If you'd like, I could, you know, Sure, probably take you through this model. And really, this model is so simple that sometimes you look at it and say, "भाई इतना ही करना होता है." And when you go into each step, you realize how important each step is. Now, this is called the 7-step model, U-turn 7-step model of looking for a partner consciously. इस मॉडल का सबसे पहला स्टेप है नोइंग योरसेल्फ. नोइंग योरसेल्फ के एरिया में हम इतने पीछे हैं. इफ यू आस्क समवन आपको क्या पसंद है, तो आपको अक्सर जवाब मिलेगा उनको क्या नहीं पसंद है. कि सब आप मुझे बता सकते हो कि आपको जिंदगी में करना क्या है? नहीं सर, वो तो नहीं पता, लेकिन ये नहीं करना, ये मुझे नहीं पसंद. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, हमारी जो दिमागी ग्रोथ है, स्पेशली इन आवर कंट्री, none of us have taken a personality test for ourselves when we were younger. None of us have seen how we have changed. None of us have really said, मेरी पर्सनालिटी ये है, मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से इस किस्म के लोग will be attracted to me, and whilst they are attracted, would or would not work with me. Here are personalities that would be completely different to me. Such, you know, kind of thing. Okay. And I think that really is 70-80% of the work that needs to be done. So किसी भी relationship में जाने से पहले, first step is, do you really know yourself? Do you know what you're looking for? Do you know what your values are? Do you know what your beliefs are? Do you know where you're going? Do you know the kind of person who'd be able to support you in these values? There's nothing wrong with one value or the other, unless you're a criminal. All I'm saying is there are people who look at money differently and then find someone else who looks at money differently. There are people who have values based in other. We just need to know who we are before we go out and start seeking other people. So that's really step one. Uske baad, once you start to build on, you know, what you've learned, you can go into finding what is it that you need to heal in yourself. We all come with baggage. हमारे पेरेंट्स हमारे साथ बचपन में क्या हुआ, हमें किस तरह ट्रीट किया गया था, और इस बारे में भी हम खुल के बात नहीं करते. There are lots of things that we you know, come with, which we don't sometimes tell people. Because why don't I read a little poem to you? Sure, absolutely. Which That's the I've actually based on that. This is called Drawing Room. आप में से कुछ लोगों ने सुनी होगी, but मुलायजा फरमाइए, I'll probably read this to you again. और ये मैंने इसलिए लिखी थी क्योंकि best foot forward, you know, आप जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप उससे ये थोड़ी कहते हैं कि साहब देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, मेरे में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी, ये जालसाजी की थी मैंने, यहाँ पे मैं वीक हूँ. You want to constantly talk about what is right. Hey, मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, yeah. And that really kills it, you know. And whilst I understand best foot forward, what is not happening is self-disclosure. पहले ये poem सुनते हैं, फिर उसके आगे बात करें. This is called Drawing Room. मुलायजा फरमाइए. Sure.
तो अब जितने लोग बैठे हैं, आई नो यू आर ऑन म्यूट, लेकिन जब मैं कहता हूँ मुलाहिजा फरमाइए, इट विल बी नाइस इफ यू कुड से इरशाद और समथिंग कभी, और हमारी I डिजिटल have महफिल में. actually put in the control, so I know, but why don't we all come on video? It will be nice if people could be on video. It will seem like, absolutely. A lot of them, guys, they don't guys, feel very open your videos comfortable. if you can. If you're not comfortable, that's fine. But It'll be really nice to see you thanks, all there. Nikhil. Thanks, 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 Partho. Partho. Arey, wow, Partho looks exactly the way he looks in his picture. Thanks for joining us, Partho. Hi, Ina. Good to see you here too. Hello, hello. तो ये अब क्योंकि मैं पोइट्री वोट्री सुनाता हूँ ना, या तो मैं खाली लेक्चर देना होता तो बात है. हे विकास, थैंक्स फॉर जॉइनिंग ऑन संडे बडी. यू लुक फिटर देन आई रिमेम्बर यू लास्ट टाइम. Absolutely. And Kobibo classes, I don't know Good what to your see you. name is. Lockdown has played its game. Yeah. Good. Thanks, Anyway, Vikas. Thank you for joining. do is maybe probably when I'm doing the nazm, you could put yourself on mute. Baki time you can open, and that's fine. So this one is called drawing room, like I said. तो घर में जब पहली बार तुम्हें लाया था, घर में जब पहली मुझे याद है, दरवाजा खोलते ही तुमको इज्जत से अंदर बुलाया था. सोफे में जिस तरफ छोटा सा छेद था उसको कुशन से छुपाया था. कारपेट का घिसा हुआ कोना स्टूल के नीचे दबाया था. इस तरह अपने ड्राइंग रूम में जो ठीक था तुम्हें दिखाया था, जो ठीक नहीं था नहीं दिखाया था. इसलिए नहीं कि मुझे कोई झूठ बोलना था, बस पहली बार कोई मिला था तो जो पहली बार मिलने पे लोग करते हैं, हमने भी वही दोहराया था. जो ठीक था तुम्हें दिखाया था, जो ठीक नहीं था नहीं दिखाया था. पता तो हमें भी था कि जब तुम साथ रहने लगोगे तो सब दिख ही जाएगा. पर तुम मेहमान की तरह आए थे तो हमने भी मेजबानी का फर्ज निभाया था. जो ठीक था तुम्हें दिखाया था, जो ठीक नहीं था नहीं दिखाया था. पर मेरे घर में हर घर की तरह ड्राइंग रूम के सिवा भी कमरे थे. पर मेरे घर में हर घर की तरह ड्राइंग रूम के सिवा भी कमरे थे, जहां ना तुम जाना चाहते थे ना मैं लेकर गया. रसोई गुस्ल खाना, पीछे आंगन में स्टोर पुराना, कबाड़ से भरा तहखाना. यहाँ तुम क्यों आते, हम तुम्हें क्यों दिखाते. जो ठीक था तुम्हें दिखाया था, जो ठीक नहीं था नहीं दिखाया था. मैंने कोई पहली बार नहीं किया था, जो दुनिया का दस्तूर है वही निभाया था. अब सोचता हूँ सब दिखा दिया होता तो क्या होता. अब सोचता हूँ सब दिखा दिया होता तो क्या होता. पता तो तुम्हें चल ही जाना था. कारपेट का घिसा हुआ कोना, सोफे के छेद, पीछे आंगन में स्टोर पुराना, कबाड़ से भरा तहखाना. क्या ये सब देखने के बाद तुम मेरे घर नहीं आते, या ड्राइंग रूम से मेरे घर के बाकी कमरे कितने जुदा हैं ये सह नहीं पाते. क्या ये सब देखने के बाद तुम मेरे घर नहीं आते. शायद दोनों ने अपने अपने स्टोर, गुस्ल खाने, तहखाने दिखा दिए होते तो आज और कुछ हो ना हो इतने हैरान नहीं होते. शायद दोनों ने अपने अपने स्टोर, गुस्ल खाने, तहखाने दिखा दिए होते तो और कुछ हो ना हो इतने हैरान नहीं होते. पहले से पूरा मकान देखा होता ना तो सिर्फ एक दूसरे के ड्राइंग रूम के अरमान नहीं होते. एक दूसरे पे, एक दूसरे से इतना कुछ छुपाने के जारी फरमान नहीं होते. कुछ भी होते ऐसे अंजाम नहीं होते, और कुछ हो ना हो इतने हैरान नहीं होते. तो क्या मैंने, बात है, शुक्रिया, क्या बात है बहुत सर, बढ़िया, क्या बहुत बात है थैंक यू. सर. ये जो जो जिंदगी के जो सच्चाई होते हैं, ये आप जो नज्म होती है आप कहाँ लिखते हो? मतलब यू just get it all of a sudden in the middle of the night. Sorry, you need to unmute yourself. Sorry. Yeah, can you unmute yourself? Yeah. Yeah. So when you mute everyone, I think it doesn't matter. ये कर दिया. Yeah. Doesn't matter. तो आप तो पूछ रहे थे कि मैं हाँ पूछ रहा था कि ये सब जो आप लिखते हो, आई मीन इट्स सो प्रैक्टिकल, वास्तव कहते हैं, राइट? तो ये यू गेट दिस थॉट ऑल ऑफ अ सडन इन द मिडल ऑफ द नाइट. मतलब हाउ, आई मीन जस्ट वांट टू नो द डिजाइन पार्ट ऑफ इट इन योर हेड कि आप कब लिखते हो. डू यू हैव अ टाइम, अ सेट टाइम इन अ डे दैट इस टाइम पे मैं इसी पे फोकस करूंगा, या फिर बाइक चलाते चलाते अप ऑन द हिल्स? ये नज़्में, ये कविताएं कहाँ से आती हैं क्या बताएं. ये नज़्में, ये कविताएं कहाँ से आती हैं क्या बताएं. एक एक लफ्ज जोड़कर कब बड़ी हो जाती हैं क्या बताएं. बच्चों की तरह पैदा होती हैं, बच्चों की तरह पैदा होती हैं, कुछ देर खेलती हैं, बातें करती हैं, कब घर छोड़कर चली जाती हैं क्या बताएं. और कलम से स्याही बनकर निकल गई तो निकल गई, रह गई तो रह गई. कलम से स्याही बनकर निकल गई तो निकल गई, रह गई तो रह गई. दिल की दीवारों से बचकर इधर गई, कभी उधर गई, बह गई तो बह गई. कभी जबान पर आते आते उल्टे पांव चली जाती है, कभी जबान पे आते आते उल्टे पांव चली जाती है. कभी रात भर शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को जगाती है. कभी हफ्तों हफ्तों नजर से ओझल छुपती है, शर्माती है.
कभी अधपकी सी बेशर्म कमबख्त सरेआम चली आती है, कहती है कोई तो मुझे नाम दो। आपने पूछा ना कि आप कहाँ से सोचते हो, कहती है कोई तो मुझे नाम दो, बेवजह आ तो गई हूं, कोई दुनियादारी का काम दो। मैं कहता हूँ बस बैठ ही रहे, पंजाबी हो ना, मैं कहता हूँ बस बैठ ही रहे, मैं हूं ना, लंबी बातें कर, कुछ मेरी सुन, कुछ मुझे सुना, कुछ कल के आज के नगमे का क्यों बार बार उठ जाती है, चुपचाप आज बस इतना कर, स्याही सी निकल कागज पे उतर, स्याही सी निकल कागज पे उतर, मेरी है तो पन्ना हो जा, कहीं भूल ना जाऊं मैं तुझको, कविता होने का फर्ज निभा, मेरी है तो पन्ना हो जा। अब क्या बताएं कहाँ से कविताएं क्या आती है, बात है, कहाँ से नहीं क्या आती, बात ये है। ना। तो मतलब ये जवाब भी आपने, मतलब मुझे लगा था आप नॉर्मल बात करके समझाओगे, लेकिन इसके ऊपर भी कविता अब है। यार अब अपना एक्सप्रेशन वाली कविता है तो हम क्या करें यार, निकलती कविताएं। तो सर ये रियलाइजेशन कब हुआ? आई एम सॉरी, आई एम जस्ट लिटिल डाइग्रेसिंग एंड आई विल कम बैक टू हम्म, relationships again. You हम्म, started your career since it is all about knowing your life and हम्म, knowing you as an individual, हम्म, right? तो ये रियलाइजेशन आपने अपने लिंक्डइन बायो में लिखा था कि आई फाउंड माय वे इन माय हार्ट व्हिच इज द हिल्स, हम्म। एंड यू रियलाइज दैट आई नीड टू गो बैक टू माय होम टाउन. सो आफ्टर हैविंग दैट ब्रिलियंट प्रोफेशनल जर्नी दैट यू हैव हैड सो फार, ये एक ऐसा कौन सा इन्फ्लेक्शन पॉइंट था आपकी जिंदगी में जहां पे आपको लगा कि नहीं, अब तो बहुत हो गया है और मेरे अंदर वो सारे क्वालिटीज हैं? तो व्हेन डिड दैट सेल्फ रियलाइजेशन हैपन? आई एट थिंक टू वन पॉइंट? प्रिज्यूम के सेल्फ रियलाइजेशन इज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट और रात को कोई विस्फोट होता है और सुबह आदमी चेंज हो जाता है, आई थिंक ऐसा होता नहीं है, एटलीस्ट मेरे साथ तो नहीं हुआ। एब्सोल्युटली. फिल्मी सी बातें लगती हैं। आई थिंक realizations, especially large realizations, happen in very small pieces. And for me, poetry happened because जो मेरे ऑफिस में जो हमारे शायर साहब थे, अंबर साहब, मैं उनको देखा करता था, मैंने कहा यार ये कैसे लिख देता है यार बंदा, अभी इससे कुछ बोलो, ये 2 लाइनें लिखता है, 2 लाइनों में इसका दीवान है। मेरे अंबर साहब कहते हैं ना, मुश्किल को समझने का तरीका, दिस करेक्ट, माय फेवरेट करेक्ट. शेर, मैं हर या जगह कोट करता हूँ। हम्म. और रिलेशनशिप्स पे इतना सटीक बैठता है ये, मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता है, तुम बात तो करते, कोई रास्ता निकल आता। करेक्ट. I think everyone needs to understand that we are not having enough conversations. हमारे घरों में बड़ी नपी तुली बातें होती है, बच्चों से ये नहीं बोला जाता, माँ बाप से ये नहीं बोला जाता। मैं तो अपने फादर को पैरी पहना के सिवा कुछ बोलता ही नहीं, क्योंकि बचपन से किसी ने कहा ही नहीं कि यार तू फादर से भी खुल के बात, अब जाके होनी शुरू हुई। अब मेरी बाल सफेद उनके सारे उड़ चुके हैं, तब जाके हमने बात की थी, क्या मे बी वेस्टेड सो मच लाइफ। तो फॉर मी देयर वर टू थिंग्स दैट आई वर्कड ऑन। मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे कि यार तू ना थोड़ा सोच के बोला कर, हम्म. मेरी ना जबान के और दिमाग के बीच में फिल्टर ही नहीं था। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो जो जो मैं सोचता गया मैं लिखता गया। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने जो जबरदस्ती के फिल्टर लगाए हुए हैं, उस हम्म. चक्कर में ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है। और हर हर शख्स अच्छा क्रिएटिव शख्स है। हमने बचपन से उनको बता बता के ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, इतने फिल्टर लगा दिए हैं कि अनलर्न करते करते जवानी में वो, फिर हम जाके फिर कोचेस के पास जाते हैं, साहब हमें सिखाओ, मैं ये हो गया। अरे तो बच्चा था, तुझे कोई फिल्टर थोड़ी था, वो तो तेरे माँ बाप ने देखो कहा कि यार तू बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, अंकल आए हुए आए हुए, तो अब उतार दे, वो सोच के नहीं है। तो मैंने जिस दिन थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया अंबर साहब की गाइडेंस में, पहले मैंने उनको दिखाया, मैंने अंबर साहब ये मैंने कुछ लिखा, उन्होंने फिर देख लिया कि आप प्लीज ऐसी चीजें लेके बाहर मत जाना, लोग मारेंगे। अब मैं भी शर्मा गया। फिर मेरी बेटी जा रही थी वो कॉलेज के एडमिशन के लिए, तो मैंने उनको प्रोत्साहित करने के लिए कहा, मैंने कहा यार बेटा you should do some projects, put something on camera, because हम्म. she was doing an arts course, so she would have gotten better results in राइट. admissions. And whatever you're good at, you must put out. So then she said, Dad, you know what? It'll be nice if you could walk the talk. Or तो मेरे को बड़ी शर्म आई, रात को मैंने 2 पैग मारे, मैंने कहा यार I have to prove to my own daughter, यार मैं जो कहता हूँ ना तेरा बाप एक अच्छा शख्स है। तो मैंने अगले दिन जाके एक छोटी सी नज्म रिकॉर्ड कर दी, ऑफिस में कैमरा है, सब कुछ है, राइट, वी राइट, मेक राइट. फिल्म्स फॉर अ लिविंग। हाँ. वो जो पोम थी, इट वाज कॉल्ड कमीजें, दैट वाज द फर्स्ट 1 or 2 poems that I करेक्ट. did, that went viral for no reason, and I have no idea why it went viral. वो मिस्टर अमिताभ बच्चन के पास किस तरह पहुंच गई, उन्होंने वो शेयर कर दी। वैसे वो 2-2.5 करोड़ रुपए लेते हैं लोगों की चीजें शेयर करने के, मेरी मोहब्बत कर दी। तो मैं अगले दिन से यार, मेरे को क्या पता कामयाबी क्या होती है क्या नहीं होती, मुझे ये पता है कि अगले दिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गए, वो आ गए। और सिंपल चीजें लिखो, आई थिंक तो लोगों को दो समझ लाइन में आ सर, जाए। उनका उसका 2 लाइन प्लीज. किसकी, कमीजों की? हाँ. मैं 2 लाइन नहीं होती, या तो पूरी सुनिए, ऐसा तो थोड़ी होता कहानी कीजिए बीच में सुना दो, फिर पता है फिर वो वहां मिले, अब ये नहीं पता कौन था कहाँ था, तो ऐसा थोड़ी होता है। ये तो पूरी आपके पूरी मतलब सुनो। इज जस्ट द फिंगर, आई मीन टिप ऑफ योर टंग, राइट? सो या, ठीक आई है, एम फिर श्योर. मैं आपको पहले कमीजें सुनाता हूँ, फिर उसके आगे प्लीज. चलते हैं। आई वाजंट प्रिपेयर्ड फॉर इट, लेट मी जस्ट पुल इट आउट।
So in the meantime, we are receiving a lot of messages from everyone. अरे Thank you वाह, so do much. read those out to me. Do Yeah, read. yeah. So we have loads of them. You know, there is Okay. Vikas said good. Ina said thank you. I agree with you. There is Vikas is mentioning that great point. True, even if you replace person with company, or on the other side, not all relationships work. बिल्कुल, Very true, Vikas. That बिल्कुल couldn't ठीक है। agree more. Vikas Uh, himself does a lot of work in that area. In fact, you should get Vikas on Glip Talk sometime. yeah, yeah. Vikas Loads and has been loads my of. Glip Talk guest, one of the first ones, अरे वाह, 2.1. अरे वाह, अरे वाह. Send me a link to what he said. And I really follow Absolutely. Vikas on the other side. Right. So So Raghav has mentioned wow, Nikhil has mentioned awesome, Thank Shravani you. has mentioned super, Archana Thank has you. mentioned you're Thank amazing. She's a big fan of you. By the way, two of my previous Glip Talk guests apparently are here with me. One is Archana, who is my अरे previous वाह, week's अरे वाह. guest, and बहुत बढ़िया. definitely अर्चना तो हमारी Vikas. भी मित्र हैं. अभी वो she's doing excellent work. I can't see her मेरी screen पे, माफी चाहता हूँ. Hey Archana. Archana is there. Okay, lovely. Sanjay has raised his hand. You know, guys, the rule of the game is for the first 40-45 minutes we talk. The last 15 minutes I open it up for the audience. So you ठीक can है. definitely तो steal मैं it. पहले कमीजें सुनाता हूँ. Kamize, मुलाजा yes. फरमाइए. आप जहाँ जहाँ बैठे अपना हाथ ऐसे उठा Irshad, देना. sir, Irshad. तो the context is that I wrote this because a friend of mine was in hospital and I was going through Facebook. तो मैं उससे कह रहा था, मैंने कहा यार तेरे को तो कुछ हुआ तो मैं आ गया, मेरे को होगा तो कौन आएगा. तो आई वाज गोइंग थ्रू फेसबुक और मुझे रियलाइज हुआ दो ही आएंगे 1000-2000 लोगों में से. तो इस तरह मैंने एक कविता लिखी थी कि ऊपर से नीचे तक अलमारी में भरी है, ऊपर से नीचे तक अलमारी में भरी हैं, 3 सफेद 6 नीली 3 पिंक 2 हरी हैं, पर सेल लगी थी तो हम 2 कमीजें और उठा लाए. पहने ना पहने देखने में तो खरी हैं, ऊपर से नीचे तक अलमारी में भरी हैं. वैसे भी आजकल कमीजें कहाँ फटती हैं कब उधड़ती. वैसे भी आजकल कमीजें कहाँ फटती हैं कब उधड़ती हैं. कभी दशहरे पर 2 मिला करती थी, सारा साल पहनते थे. आजकल तो सरेआम हर रोज मिला करती हैं. आजकल कमीजें कहाँ फटती हैं कब उधड़ती. पर कमीजों की तरह दोस्तों का भी हाल हो चला है. 3-4 बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे कभी, अब तो फेसबुक पे एक के बाद एक नया सिलसिला है. कमीजों की तरह दोस्तों का भी हाल हो चला है. हाँ, कभी सोचते हैं 3 सफेद वाली रख के बाकी सब कमीजें दे दी जाए. कभी सोचते हैं 3 सफेद वाली रख के बाकी सब कमीजें दे दी जाएं, पर पिंक वाली पार्टी में बहुत अच्छी लगती है और ग्रीन वाली फॉर्म पैंट के साथ. किससे किसका मैच कराएं, कौन सी रखें, कौन सी लौटाएं, कौन सी बांटें, कौन सी बचाएं. कभी सोचते हैं 3 सफेद वाली रख के बाकी सब कमीजें दे दी जाएं, या चलो छोड़ो भरी रहने दो अलमारी. कम से कम खोलो तो लगता है कमी कोई नहीं होनी चाहिए. इंसान के पास हर किस्म की कमीज होनी चाहिए. पर कमाल है ना साहब, देखिए ना, कमाल है ना साहब, देखिए ना, दिल साला उन्हीं पे आता है. कमाल है ना साहब, देखिए ना, दिल साला उन्हीं पे आता है. 2 हो, अच्छी हो, सफेद हो, अकेले में हाथ फिर उन्हीं की तरफ जाता है. फिर क्यों हर किस्म की कमीज होनी चाहिए. फिर क्यों हर किस्म की कमीज होनी चाहिए. 2 हो, अच्छी हो, सफेद हो, दोस्तों में दोस्तों, दोस्ती की तमीज होनी चाहिए. 2 हो, अच्छे हो, सफेद हो, दोस्तों में दोस्तों, दोस्ती की तमीज होनी चाहिए. तो इस तरह कुछ कहा था. क्या बात है. थैंक यू. You made an evening, huh? I think that's the best Valentine thing that could have ever happened. I hope so. तो सर ये जो बात है आपकी, मतलब जो दिमाग और दिल के अंदर जो फिल्टर नहीं काम करता है आपका, and you're absolutely blunt and straightforward. You just say it was there in your heart. इसके वजह से I'm sure you have had certain experiences which were not so good. with that wicked smile, it is apparently saying that, I'm sure. तो सर उस चीज को आप कैसे हैंडल करते हो जहाँ पे आप एकदम मुंह ज़बानी बोल देते हो जो आपके दिल में है. मैं हैंडल कहाँ करता हूँ यार. जिनके फिल्टर नहीं होते दिमाग और मुंह में, उनको कुछ हैंडल करने की लोड़ कहाँ है. वो तो अब कह दिया. अब हैंडल तो उसने करना है जिसको सुनाई दे रहा है. तो मैंने क्या हैंडल करना है. तो भाई इसकी वजह से मैं रिलेशनशिप में मैं आपने कब से अक्सर दोस्तों को बोलता हूँ, स्पेशली जब 2-3 पैग मार लेते हैं ना, मैंने कहा मुझे सच्चाई से बोलने को मत बोलना. मैंने जब जब सच बोला है दोस्त खोए हैं. तो एक तो आसपास लोग ऐसे होने चाहिए जो कि थोड़े से सॉलिड हो, थिक हाँ. स्किन हो. बिकॉज when is the last time anyone taught you that feedback is something that you should ask for? We have always been taught to defend and reflect off feedback. Right. Even as friends, we find it very difficult to really tell what we feel. मेरे साथ ऐसा नहीं है. मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ, and I can kind of also listen to a lot of stuff about myself. And I don't think this is how I was always. I think this is what we've always learned. But I still believe that people who love you, people who appreciate that you're authentic, people who appreciate कि यार जैसा ये बोल रहा है ना वैसा ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा सोच के नहीं बोल रहा. तो you also start to kind of attract a certain kind of people. बहुत अच्छा किसी ने उस दिन मुझे बोला कि आप जिस राह पे चल रहे होते हैं ना,
उस पे जो आपको लोग मिलते हैं वो भी तो उसी राह पे जा रहे हैं ना। तो Correct. मेरे को बहुत सारे ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है ना जो कि अनऑथेंटिक है। तो मेरी राह पे तो यार मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो सीधी सीधी बात करते हैं, और हम सारे ही सीधी सीधी बात करते हैं। तो ये वाला जो कारवान है इसमें सभी खुले दिल के और खुली जबान रखने सीधे वाले। रास्तों में चलने वालों में से है. हम्म। So you really do not actually care about certain way when you actually see certain so you don't have anything called diplomacy in you, No, do I you? don't think that is fair to say. I think it is diplomacy is required. Hmm. I'm only saying that I'll be authentic. अगर तू मुझे पूछेगा कि तू कैसा लग रहा है तो मैं कहूंगा नहीं यार तू बहुत बढ़िया लगता है। अब मुझे काली जैकेट पसंद है या नहीं पसंद है मैं तेरे को क्यों बताऊंगा? तो दैट्स डिप्लोमेसी। और Right. अगर तू मुझे पूछेगा कि पाजी जो आपने जैकेट पहनी हुई है आपने कहाँ से खरीदी, तो मैं अगर 4,000 रुपए की खरीद के लाया हूं तो मैं इसे 5 भी नहीं कहूंगा और 3 भी नहीं कहूंगा। दैट्स ऑथेंटिसिटी। सो आई नो द डिफरेंस बिटवीन डिप्लोमेसी एंड ऑथेंटिसिटी। ऑल आई एम सेइंग इज लिसन, we do want to not hurt, we do want to, but you can't take diplomacy to a point where people don't know really what you mean. So if what True. I'm meaning is what I'm able to convey, I think that's good. अंबर साहब को जो मैंने आपको शेर सुनाया ना, मुश्किल को समझने का तरीका निकल Correct. आता तुम बात तो करते करते। रास्ता निकल आता। इसका अगला शेर है कि मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता, और मेरे लिए ए दोस्त बस इतना ही बहुत था, मेरे लिए ए दोस्त बात तो बस करते। इतना ही बहुत था, जैसा तुझे सोचा था तू वैसा निकल आता, मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता। तो जैसा यार तू मुझे कहता है कि सम्राट तू है, अगर तू वैसा नहीं निकल रहा तो यार फिर बहुत दिन तक कैसे चलेंगे हम, है ना? तो ऑथेंटिसिटी तो जरूरी है। So, sir, in your definition, when do you success and how do you success? Sorry, how do you measure success and failures? What are the parameters that you look at? Because आपने कहा कि कोई भी खराब नहीं होता, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ qualities होते हैं. We all are gifted in some way or the other. Probably we don't realize that particular potential for ourselves. But if you really have to measure success, your view towards measuring success or your views towards measuring failures, how do you do that? I don't have a complete answer. I think I'm still on that journey where I have to form all those answers. मैं ये बता सकता हूँ कि मुझे कब कब कामयाब महसूस हुआ है। Right. Okay. When I have felt successful and what do I not care about? मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, हम सोसाइटल कॉन्वर्सेशंस में अक्सर पूछते हैं आप करते क्या हैं। जैसे ही यू आस्क मी दैट, यू पुट मी इन अ सिचुएशन वेयर आई हैव टू आंसर इन द स्ट्रक्चर दैट यू गिवन, व्हिच इज बताइए आपने क्या किया है, और उसके हिसाब से फिर नेचुरली सोशल नॉर्म्स बने हुए हैं। मैं किसी कहूंगा यार मैं वहां पे ये दुकान चलाता हूँ और मेरी दुकान चलती नहीं है, तो आपके हिसाब से मैं अनसक्सेसफुल हूँ, व्हिच इज फेयर। ओके, ऑल आई एम सेइंग इज if knowing that the society is going to measure you like that, if you can ask yourself कि यार जो मैं कर रहा हूँ एंड ऑफ द डे मुझे मजा आ रहा है, और क्या मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहां मैं एक इज्जतदार जिंदगी गुजार पा रहा हूँ, आई थिंक दैट टू मी इज सक्सेस। द कॉम्बिनेशन ऑफ बीइंग एबल टू डू व्हाट यू रियली वांट टू डू एंड आर हैप्पी डूइंग along with a certain level of comfort. मुझे गरीब होना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी अच्छी विस्की खरीद सकता हूँ, मुझे अगर गाड़ी का शौक है, मुझे बहुत ज्यादा शौक नहीं है, बट विद व्हाटएवर आई रियली वांट टू बी हैप्पी विद, आई एम हैप्पी। मुझे उससे ज्यादा भी नहीं चाहिए, बिकॉज द फ्यूटिलिटी ऑफ हैविंग मोर देन व्हाट यू एब्सोल्युटली रिक्वायर डज नॉट ऐड टू हैप्पीनेस। If you can find a balance between what is necessary and makes you comfortable and gives you an opportunity to do what you really, I think it's blissful, and that's what I call success. नाकामयाबी क्या है? Doing something, making a lot of money and yet not being happy, or being exceptionally happy or so-called के ला सकता। I think you need to find a balance somewhere and say, look, this is enough, this is great, and I'm happy. If you can find this balance, I think you're successful, and that's how I've looked at leading my life. सर तुम बात तो करते, कमिंग बैक टू दैट पर्टिकुलर नज़म, ये आप किसके लिए बोलोगे? इज इट नॉट फॉर बोथ द पार्टीज इन द रिलेशनशिप कि हु इज टेकिंग द फर्स्ट इनिशिएटिव? I don't know, it's little confusing in the head when you're actually going through a bad phase in your relationship and you think that you have given in enough. You think that you have been way too accommodative. You think you have actually taken a lot of those things that was probably not, you were not supposed to absorb. But for the sake of sanity, because you want this relationship to work, you actually, at the back of your head, you think that you have compromised. That's a wrong way of probably looking at it. You adjusted. But there is a threshold. You reach certain threshold and उसके बाद लगता है अब तो अति हो रहा है.
इसके बियॉन्ड मुझे नहीं जाना चाहिए, तब लगता है मेरा जो आत्मसम्मान है उसमें थोड़ा धक्का पहुंचता है या फिर लगता है, तो देन यू विथड्रॉ योरसेल्फ। तो क्या वो रियलाइजेशन उस टाइम तक उस इंसान को अगर समझ नहीं आता है, क्या तभी भी आप लोगों को बोलोगे कि तुम बात तो करते? बहुत 5-6 सवाल आपने एक सवाल में पूछ डाले। लेट मी ब्रेक इट डाउन। पहली चीज, मैंने आपसे कहा कि बात करनी जरूरी है, whether it is a conversation between two people, bosses, subordinates, countries, nations, communities, the president of the colony and the rest. तो किसी भी दो पार्टीज में बात जब होनी शुरू होती है ऑथेंटिक तरीके से और खुलेपन से, तो आपको बहुत कुछ दिखने लगता है जो कि आप पहले नहीं देखना चाहते थे। पहली चीज तो लेट्स फर्स्ट एस्टैब्लिश कि कॉन्वर्सेशन के सिवाय हमारे पास क्या क्या चाह रहे हैं किसी भी चीज को सॉल्व करने के, कोई नहीं है। अल्टीमेटली इवन द बेस्ट जजेस विल टेल यू कि देखिए, आपको आपस में बात करके निवारण तो आप ही को निकालना पड़ेगा, मैं तो साइन कर सकता हूँ। तो लेट्स अंडरस्टैंड दी ग्रेविटास अराउंड व्हाई कॉन्वर्सेशंस आर इम्पोर्टेंट। प्रॉब्लम यह है कि हमें बात कैसे करनी है कोई नहीं बताता। हमें कोई ये नहीं सिखाता कि बात करने के लिए आपको ये आना चाहिए, दूसरे को ये तैयार होना चाहिए। सो आई थिंक ब्लेमिंग एंड सेइंग कौन गलत है कौन सही है किसको पता है। एवरी कपल इज डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल रिलेशनशिप इज डिफरेंट, और मैं और आप कौन होते हैं उस पर टिप्पणी करने वाले। एंड इवन इफ आई से हाइपोथेटिकली कि कुछ ऐसा हुआ होगा, इवन देन आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस अंडरस्टैंड एवरी रिलेशनशिप इज यूनिक। हमें कोई बता रहे नहीं यार मेरे साथ भी ऐसा होता, हमें नहीं पता हमारे साथ ऐसा होता था पुत्र, तू अकेला थोड़ी है। किसी को नहीं पता। मेरे माँ और बाप के बीच की जो रिलेशनशिप है वो उनकी है, मेरी और मेरी बीवी की रिलेशनशिप मेरी है, और ना वो समझ सकते हैं ना मैं समझ सकता हूँ, ना हमने कभी पूरा शेयर किया है। और हम शेयर भी कर देंगे तो कोई इंसानी दिमाग के अंदर जाके पूरा नहीं समझ सकता कि हमने जब हमारे साथ हुआ था हमने महसूस कैसे किया। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, feelings involved, the emotions involved, there is, so it's too A lot of complex. things. But conversations, when they start to happen openly, create a large space in which more conversations can happen. हो सकता है कि कॉन्वर्सेशन करने के बाद खुलेपन से आपको लगे कि नहीं यार हम तो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। एटलीस्ट यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग अबाउट इट। हाफ द कॉन्वर्सेशंस डू नॉट हैपन बिकॉज दे ब्रिंग आउट ऑथेंटिसिटी। अरे यार इस बारे में बात करेंगे फिर साला वो मुद्दा आ जाएगा, उसके बारे में कुछ करना हमें यानी अच्छा कॉन्वर्सेशन ही ना करो। मोस्ट कपल्स दैट आई सी हैव स्टॉप्ड हैविंग कॉन्वर्सेशंस क्योंकि पुरानी कॉन्वर्सेशन उन्होंने क्लोज नहीं की थी। वी कीप पुटिंग सो मच अंडर द कार्पेट कि ओवर इयर्स बचता ही नहीं कुछ बात करने को। और यही अब आप रिवर्स कर दो, आप बोलो नहीं यार वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन, इन अ कॉन्वर्सेशन वी विल ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल, in a conversation we will always give space, in a conversation there will be a large kind of listening, and whatever the result of the conversation is both of us will accept. तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो आप इस पाथ पे चल दोगे जहां एक साथ जाना चाहते हो या नहीं चलोगे। The problem is that in India we used to have, and by the way in the world we are the least divorced country, even less right. than Arabic countries. और जब आप अर्बन सर्वेज देखते हो, मुझे सारे हिंदुस्तान को तो नहीं पता, 60 to 70% people say that we have had extramarital affairs. What does that tell you? It means the extramarital affair is a norm today. Right. Staying within a marriage is the exception. Exception. If you ask people, would you want to be in this marriage given a chance, they would say no, which No. means it's बड़ा मुश्किल है डिवोर्स लेना, बड़ा मुश्किल है दूर जाना। ऐसा नहीं है कि लोग चाहते नहीं। दूसरा, we find it very difficult to go to people who can help. ज्यादा से ज्यादा तो वो बुआ के पास चला जाएगा, चाचा और मामा। It's crazy. There are people trained to help, but we don't want to go there because वो जाएंगे तो कहेंगे जी आपकी तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। तो मैं कह रहा हूँ कि before anyone gets together, put them in counseling. Tell them to expect this. उनको समझाओ कि काका तेरे साथ ये होने वाला है, या बेटा तेरे साथ ये होने वाला है। Are you ready? No one in India should be allowed to have a kid till they've understood what parenting is. Yeah. हमारे यहाँ तो बच्चे पैदा करना तो मतलब यार हुई थी जी, मैं यार क्या बेकार की बात हो गया जी। हम भी ऐसे ही आए थे, आगे भी ऐसे ही आ रहे हैं। किसी को पता ही नहीं है कि whether we are ready to become parents or not. और फिर आगे उन्होंने बच्चे भी वैसे ही पालने हैं और फिर वो बच्चे आगे जाके अब so it's such a vicious cycle. All I'm saying is guys, time to talk about relationships, time to talk about introspection, time to talk about whether we are mature to get into relationships, take relationships together forward, whatever. And that is where conversation, जैसे आज हम बात कर रहे हैं, अभी खुल के बात करेंगे तभी तो आगे लोग कहेंगे ना कि यार आओ चलो इस बारे में बात करते हैं। नहीं करेंगे तो कब तक करो, मारो क्या करो।
Great. So we are at 5:45. It's time to take audience questions. ओह अच्छा खत्म हो गया टाइम नहीं पता खत्म ही नहीं लगा हुआ. So we have Sanjay and Archana who would like to ask जी you the question प्लीज directly. प्लीज So प्लीज we have Raghav as also. So I have one from London. हम्म, I have one from US. I have one from Haryana. की who फर्क पैंदा भाजी कित्थों बोल रहे हो सवाल सवाल होता है तो ये जो बाहर वाले इनको सॉरी लंदन से अबे जूम कॉल है कहीं से भी आ सकती है नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि ये I really like their आई participation एम the ग्लैड reason कि I'm इतने सारे लोग explicitly इतनी taking that particular Vikas is also raised this time. Very nice. जी I'm जी coming to प्लीज all of you one after the other. It प्लीज feels so nice because it's a candid conversation. And जहाँ पे कोई मतलब वो ज्ञान तो बांटते नहीं है ना सर तो thank you people like you ज्ञान who are कहाँ से आएगा constantly supporting this initiative. बहुत प्लीज बहुत आभारी हैं. Sanjay, थैंक why don't you unmute yourself and go and ask your question to Vineet directly? हाँ, रिगार्डिंग रिलेशनशिप का मेरा जो मूल मंत्र है वो ये है कि अगर रिलेशनशिप गिव एंड टेक पर आधारित हो तो वो निभ जाएगा. अगर सादा ही ये होना चाहिए कि गिव 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 हो और उसमें टेक टेक ना हो तो वो रिलेशनशिप नहीं निभ सकते. तो ऐसा कोई इंडिया में कोई एनजीओ होना चाहिए जो हमें ये बताए संजय जी कि आप सवाल रिलेशनशिप. पूछ रहे हो सवाल तो बता दो क्या है हाँ, सवाल अब मैं पूछ हाँ रहा हूँ कि हाँ पहले मैंने अपना मूल मंत्र बता दिया कि ये होना चाहिए गिव एंड टेक का जो रिलेशनशिप का ये मेन आधारित है. बिल्कुल मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ हमारे जो एजुकेशन सेक्टर में वो ये बताएंगे भाई पैथागोरस एग्जाम क्या होती है, न्यूटन का लॉ क्या होता है, इन सब लॉज और एग्जाम्स की सवाल फर्दर जीवन में सवाल सवाल संजय जी तो सवाल तो तो मेरा ये है कि कुछ ना कोई एनजीओ ऐसा होना चाहिए जो रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा अच्छा गौर होना करे. चाहिए जी ये होना मेरा. चाहिए लेकिन आपका सवाल क्या है ये तो बताओ सिकल साहब हाँ, गिव एंड टेक के सवाल बारे ये. में आप बोल रहे थे कुछ संजय. नहीं वो बोल हाँ, रहे हैं अभी फिर तो मैं समझ गया आपका गिव एंड टेक मुझे बताओ आपका सवाल क्या है हाँ, मेरा ये सवाल है कि इंडिया में ऐसा कोई एनजीओ या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट क्यों नहीं है जो है नहीं जी बनाया नहीं अभी जी रिलेशनशिप. बनाने अभी बनने वाला है तो उसी पे काम कर रहा हूँ जल्द करते हैं जैसे ही इस्टेब्लिश होगा अच्छी सबसे बात है. पहले ग्लिप टॉक में सम्राट को बताऊंगा ये सबको बता दे थैंक यू क्या Thank you बताऊं very जी क्यों नहीं है मैं क्या बताऊं क्यों नहीं हाँ कोई जी ना संजय जी आई एम श्योर अगर गूगल करोगे तो हम आपको मिल जाएगा करते हैं कहीं जी ना कहीं. कुछ ना कुछ करते हैं पाजी करते हैं सर कुछ साथ में करते हैं. Archana, it's your turn. Thank you, Sanjay, so much for joining us and ask your question. Archana, why don't you unmute yourself and go ahead and ask your question? Hi, this is हाय हाय Archana अर्चना from हाउ आर यू हाउ वाज योर ट्रिप टू AGP. चंडीगढ़ सब ठीक ठाक अभी भी वहीं हैं आप नहीं जी मैं घर आ गई बिल्कुल. अरे वाह वेलकम आपकी आवाज नहीं आ रही है अर्चना. If you थोड़ा could थोड़ा shift पास your रखो nostrils. Now This is हाँ better. मच बेटर okay. So yeah, Chandigarh was good and yeah, I just came back yesterday in the night. Everything well. आपसे तो मुझे लग रहा है I have to catch up like what because there's so many things I want to ask you but because Samrat won't give me that time so quickly मैं पूछती हूँ कि ये जो जर्नी मैंने ली है कॉर्पोरेट से अपनी जी कुछ करने के लिए बहुत जी मुश्किल जर्नी है वो जी मुझे नहीं पता था to be honest. हम्म So there are times when and especially pandemic happens so there are times when I'm really like going down every day and like I have to lift myself every day up to say hang in there. So because I think you have gone through a lot of your own जी turbulences, जी how do you think we can manage this every day? How do you motivate yourself every day? So I can tell you what worked for me. I don't really have a mantra which I can pass on. I'll tell you when I felt really alone in this journey and when I thought I was completely supported. Yeah, that. I felt immensely alone when I did not know that I can ask for help. बहुत ही अक्खड़ कॉलर हमेशा ऊपर पहले जी हम ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं हम थोड़ी जाएंगे किसी को बोलने के जी हमें भी मदद चाहिए is the worst way of doing an entrepreneur kind of journey. Tell your friends that you're vulnerable. Tell them कि बॉस मेरी लगी हुई है. Tell them कि मुझे मदद की जरूरत पड़ती है और हो सकता है मैं तुम्हारे पास आऊंगी और कई बार ज्यादा आऊंगी. अगर लगे कि मैं ज्यादा आ रही हूँ तो मुझे बता देना वरना मैं आती रहूंगी. The only way people really start to support you is when you are vulnerable. अगर सबको लगता है कि नहीं यार वो तो बहुत स्ट्रांग है वो तो भाई वो पहले कंपनी में ये थी और उसने तो ये किया हुआ है उसको थोड़ी जरूरत है वो कोई कौन पूछने थोड़ी आएगा यार एंड really synergy start to work. Let people know that you need help. Let people know that you're vulnerable. सच्चाई से बात करो and just I think that is what has really worked for me. I have been in such bad situations in the last 10 years. All I needed to do was to tell this core group of mine कि बस हो गया कबाड़ा हो गया and suddenly you realize everyone has some resource.
And when you were not reaching out, nobody knew. So the more you communicate with friends and keep good friends together, keep talking to them. कोई ऊपर तो अब है नहीं, ना कोई बताने वाला है, ना वो है, ना कोई organization है, अपने आप से बात करनी होती है. But when you see closely, every role that you needed in your organization. For example, I can be a marketing manager if I knew what you needed, right? If I know that you need support, just announce. And who knows कौन खड़ा हो जाएगा कौन नहीं होगा. We That's all really are what there, is good. right? I'm also there, Archana. We have spoken. Of course. In candid. We all are Of there to help course. and support. जी. So yeah, I think And reach I know out. Viniji will know that I have been troubling him so much, and he's such a darling. And thank you so Thank you, much ma'am. for supporting me. Thank you. So Anyone, far. we all support each other. Yeah. But thank you. Thank you, Archana. Vikas, your turn next. Thank you, Archana, for asking that question. Vikas. go Good ahead. evening, Panji sir. Thank you so much. Hi, Vikas. Good to see you. Same here, likewise, and great spending this evening with you. Thank In you. sir. fact, मतलब मैं कुछ नहीं था every इसमें. Wow. interaction is, of course, Samrat, thanks to you. But every interaction is a lot of learning. So Thank the you. question I have for you is linked to something similar to what Archana just spoke about. Ji, And ji. you are from a creative field as well, and that's something that obviously Ji. requires you to be on top of your creative, innovative Ji. game. Ji. Right? I'm also in a similar space where I'm trying to do something new, Ji. fresh, out of the corporate world, Ji. create something. But where I find the graph so-called dipping at times is when the creativity gets blocked, which is essential for my success now. Right. But the pressures, the so-called pressures of ghar chalana hai, and बिल्कुल ठीक बात. getting that stability in obviously tends to cloud the larger thinking. And how do you then kind of balance it out? I mean, is there a trick to that? There is and there isn't. I'll tell you again by doing a little comparison of when things worked for me and when did I think I was completely doomed. तो पहले मैं क्या करता था विकास कि मैं सोचता था ये लोगों को क्या पसंद आएगा, and hence I thought my creativity should really answer to that ask. Things started working for me when I really said, look, I need to be authentic about what I want to say. And you slowly see a drop in your tribe initially because pehle aap you were catering to, a menu. And later you realize that a new tribe appears. तो आप मुझे सिर्फ पिछले 2 साल से जानते हैं, मेरे उससे पहले के 9 साल का किसी को याद नहीं है. लेकिन उससे 9 साल पहले मैंने अपनी सबसे अच्छी फिल्में बनाई हैं. But nobody really knew because I was doing एक मैं इधर कर रहा था, फिर एक इधर कर रहा था, फिर चल रहा यार उसने ये कमेंट किया था. अब मैं क्या करता हूँ कि मैं महीने में एक बार जाके सबको थैंक यू कहता हूँ कि आपने कमेंट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए. लेकिन मैं अगर हर एक की बात सुनूंगा, अगर मैं हर एक के उस पर तवज्जो दूंगा, तो हमें ऐसा लगता है कि हम क्रिएटिव तभी हो सकते हैं when we really don't give a damn to what people say. And that area is really your authentic area, and you will see that people get replaced. Correct. Suddenly a new tribe appears, and that's really what has worked for me. तो creativity तो मरती है ही नहीं यार, नहाते हुए, शेव करते हुए, वो करते हुए हर जगह आइडिया आता रहता है. The thing is हम आधे आइडिया रिजेक्ट इसलिए कर देते हैं क्योंकि there is some data points sitting somewhere which say नहीं यार ये काम किया था नहीं किया था. Instead of saying नया आइडिया चल करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ who knows, जो आइडिया आता है डाल के तो देखो, फिर उसके बाद जो अच्छा है उसको रेप्लिकेट कर देना, जो नहीं है. मेरे पास तो यही जवाब है यार. Thank you so much. Great. Thank you so much, Vikas, for asking that question. And I can resonate, what Sir has just mentioned, that, Glip Talk that I've started for the last 6-7 months, it has reached a certain level. And I realized there is a need to have something incorporated, which you and I have spoken. So I'm coming up with that idea once in a month called Glip Talk Academia, where it's a free learning for everybody. So that will probably get a twist. So I'm sure this is absolutely what he mentioned. And I think you are doing fantastic because Attain is there, and we wish all the very best that it would reach that particular height one day. So the hard work would definitely pay off, and any help that you require, we all are here because like the way we are there to support each other. Next, coming to Raghav. Raghav, your turn to ask a question quickly to Vineet. विनीत साहब, यहाँ तो गुड मॉर्निंग है. मैं हूँ जो यूएस से काम कर रहा हूँ. अच्छा, माधु साहब बात कर रहे थे. तो सम्राट नेवर मिसेस अपॉर्चुनिटी टू पॉइंट इट आउट. काफी दिनों से ज्वाइन नहीं किया आपने राघव साहब, सो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे. यार मतलब 6:30 बजे सुबह उठा देते हो तो. आई नो. उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे होगे. हाँ, मैं मेरी शक्ल देखिए अभी ऐसे कैसे हो रही है. मेरी तो बेहतर है, मेरी नॉर्मली ऐसे रहती है.
हुक्म करें। So, तो I mean, मेरा एक्चुअली सवाल नहीं है, बट आई मीन आई रियली लाइक योर नज़्म परिंदे। तो मुझे वो पूछना था कि वो आपकी लिखी हुई है या किसी और का शेर है, या परिंदे उसमें? कौन सी? हाँ, एक तो मैंने पढ़ी थी गजल, दिल्ली के बड़े मशहूर शायर हैं मंगल नसीम, परिंदे हौसला कायम उड़ान में रखना। आप उसकी बात हाँ, कर रहे हैं? हौसला का, नहीं हाँ साहब, हाँ वो तो हाँ मंगल नसीम बहुत बड़े शायर हैं। ये मेरी पसंदीदा हाँ गजलों में से एक है, हाँ परिंदे हौसला कायम उड़ान में रखना। परिंदे हौसला कायम उड़ान में रखना, सबकी निगाह तुझ पर है ध्यान में रखना। एंड अर्चना मुझसे पूछ रही थी, तो मैंने शुरू शुरू में क्या किया था कि मोटिवेट तो करने वाला कोई होता नहीं एंटरप्रेन्योरशिप में, तो मैंने ये तीन बिल्कुल चार चीजें ऑलमोस्ट लाइक नोट्स टू माई सेल्फ, क्योंकि मुझे शायरी पसंद थी, मैंने अपने आगे लगा के रखी। इनविक्टस, परिंदे हौसला कायम उड़ान में रखना, दो हाँ अंबर साहब की वो। और इसका सबसे पसंदीदा शेर जो मेरा है वो मैं आपको सुनाता हूँ कि परिंदे हौसला कायम उड़ान में रखना, सबकी निगाह तुझ पर है ध्यान में रखना, और हर इम्तिहान पे मंजिल करीब आती है। हर इम्तिहान पे मंजिल करीब आती है, खुद को हमेशा इम्तिहान में रखना। कीप टेस्टिंग योरसेल्फ, कीप वाह चैलेंजिंग योरसेल्फ। वाह, परिंदे हौसला कायम उड़ान में रखना, ये यही वाली थी ना जो आप ब्यूटीफुल। याद कर रहे थे? हाँ, बिल्कुल क्या बिल्कुल, बात है। you made my morning, I mean you made my day. This was absolutely हमेशा अपने आप को आपके इम्तिहान में रखना। खुद हाँ, को आप हमेशा आपके इम्तिहान में इस ओरेशन से इतना अच्छा लगता है ना ये, दिस रखना। दैट्स व्हाई आई थॉट शुक्रिया। ये मैं पूछूं कि ये कहाँ से आया, नहीं, ये नहीं, ये where did it मंगल come from? नसीम साहब है, एक बार उनको हमने देहरादून हाँ बुलाया था एक छोटे से मुशायरे के लिए, तो हाँ जी, उन्होंने वहां पे ये कही थी, तो मैंने नोट कर ली थी। फिर मैं जब भी नेचुरली, इवन इफ यू गो बैक टू, आई मस्ट हैव सेड कि मंगल नसीम की है। ओके, बहुत अच्छे शायर हैं, इफ यू सर्च, इफ यू गूगल हिम, उनकी 3-4 गजलें तो कमाल की हैं, उनमें से एक है, मुझे बाकी याद नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, Thank you, शुक्रिया, Raghav. बहुत Thank you बढ़िया so लगा, much for asking your थैंक्स। question. Hmm. Coming to Gunjan, you're the next one. Why don't you हाय unmute गुंजन। yourself? Hello, good evening, Vineet ji. इवनिंग गुंजन। So, sir, I have this question, like when you started your creative journey, there are moments the self-doubt monster comes. ओह एब्सोल्युटली, आज भी, So, yeah, so एवरी डे। I mean, how did you tame the self-doubt monster? Because I also started my So you don't tame self doubt, you live with it. okay, You okay, can't. Self doubt okay, is a part of us. I think okay, the more, I mean, so called successful you become, जैसे मैंने अपनी definition की, whatever your definition is, hmm. I think the ability to constantly remember कि हमें सब कुछ तो आता नहीं है यार, डर भी लगता है, छोटी से छोटी चीज में भी डर लगता है, and that's fine. So stop questioning self doubt. The thing is you got to be brave. सेल्फ डाउट के बावजूद आप करते जाओगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। सेल्फ डाउट पे फोकस करना थोड़ा कम करना पड़ेगा, बट ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, आपने टेम किया, पहले मुझे कन्फेस करना है कि नहीं, मैंने भी टेम नहीं किया। सेल्फ डाउट कम्स एवरी डे, Okay, यू जस्ट हैव टू बी ब्रेव। सो आई कैन टेल यू हाउ आई हैव बीन एबल टू बी ब्रेव। yes. मैं 2 पैक मारता हूँ जी रोज शाम को। With the peanuts and the scotch in the hand, But, huh? yeah, but साढ़े thank you 7 for बजे के बाद such ये इश्यू an होता तो स्कॉच yeah. होती। No, thank you for such an honest answer. नहीं मैम, नहीं, I wish, I mean, I don't know, there must be someone who's been able to do it। मेरे तो बहुत सेल्फ डाउट है जी, रोज आता है। हाँ जी। Great, thank you so much, Gunjan. Okay. Well, we Thank are just nearing time, but उससे पहले मेरे जो खुद के 2 सवाल हैं सर, एक ही आखिरी सवाल है आपसे। जिंदगी में अगर आपको 3 वो चीज टाइम मशीन में अगर जो जाके या फिर रिवाइंड करके वो 3 चीज अगर आपको चेंज करना है, जिसके लिए शायद जिंदगी कुछ और हो सकती है, जो शायद आपने अपने दिमाग में सोच के रखा है, 3 या 2 चीज जो भी हो जो भी है वो व्हाटएवर इट इज, वो कौन से 3 वो 2 चीज है जो आज भी आपके दिमाग में है कि शायद मैं अगर मौका मिले तो वो चीज शायद चेंज करना चाहूंगा? I'd written something like a little note to myself as a younger man कि अगर मैं अपने ही जवान वर्जन को 25 साल पहले जाके कुछ समझाता तो उसको क्या बताता, टाइप की कुछ मैंने लिखा था। But really, I mean, to say I have no regrets would be a complete lie. It's a great cliched term to say कि नहीं हमें I have no regrets, सब कुछ तो ठीक है, ऐसा नहीं है। I mean, if I had an opportunity to go back and change a few things, my top 1 or 2 would be I would work way more on my relationships. I would pay way more attention on my relationships compared to what I did in my career. So I think I would pay more attention to people rather than paying attention to tasks. Even though I was a head of HR, हमारे साथ क्या हुआ था कि हमें बहुत जल्दी लीडर बना दिया गया था। मुझे आज रियलाइज होता है कि the industry was booming, everyone was, so जगह खाली हो रही थी, तो मेरे जैसे untrained लोगों को लीडर्स बना दिया गया।
और उससे नुकसान ये हुआ कि मैंने, आई एम श्योर जिन लोगों ने मेरे साथ, मेरे नीचे, मेरे साथ काम किया होगा, बहुत गाली देते होंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था यार. When you put somebody who's 26 and make those people assistant vice president, president, just because the company is growing and everyone is doing well, I think in relationships and otherwise, we should look for maturity, which might or might not come with age, but at least we should attain a certain level of maturity without which we should not be given tasks that impact other people. Right. वही लोगों की शादियों में होता है और वही लोगों के रिलेशनशिप्स में होता है जब वो और लोगों को लीड करते. तो मैंने पता नहीं कितनी जिंदगियां खराब की होंगी, कुछ ठीक भी की होंगी, बट पॉइंट ये है कि आई वुड गो बैक एंड टेल माय बॉस कि बॉस, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस रोल. आई वुड give me a few more years before you ask me to lead other people. I think those are some of the things I would have changed. Brilliant. Well, Ina, you wanted to ask one question. Do you want to unmute yourself and go ahead and ask your question very Hi, quickly? Ina. One little question was coming in my mind, sir. जी जी. आपकी आवाज जादू है सबसे पहले तो. अच्छा, थैंक यू ईना. पैसे भेज देना, मैं दे दूंगा अपना जीपे वाला वो. गजब आवाज है. मतलब महीने के 100 रुपए ईना की तरफ से वो वेल चढ़ाते थे ना, भाजी ला लो. मैं सच बोल रही हूँ. आई थिंक सभी के बिहाफ पे ही बोल रही हूँ. थैंक यू. देखिए, नज्म का अपना मजा होता है, लेकिन उसको जो सुनाने वाले की जो वो शिद्दत आती है और अंदर से वो आवाज आती है, वो उसमें जादू का कमाल करती है. थैंक यू वेरी. अच्छा, क्वेश्चन ये था कि जो हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की, और आपने बच्चों का भी नाम लिया इसमें, तो किस उम्र से बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए, और क्या स्कूल के करिकुलम में इसको ऐड करना चाहिए, और किस क्लास से एडिशन हो जाना चाहिए? I wish I had all those answers. मुझे सिर्फ इतना पता ही ना कि होना चाहिए. किस क्लास से, अब इट्स लाइक आस्किंग हिस्ट्री किस साल से पढ़ानी चाहिए. अब अगर कहीं से तो पढ़ानी शुरू करो, अभी तो है ही नहीं. अग्री. कुछ तो पढ़ाओ. मैं कह रहा हूँ घरों में सिखाओ, दफ्तरों में सिखाओ, स्कूल में सिखाओ, पर सिखाओ तो सही. अभी तो बाइनरी है ना, सिखाया नहीं जा रहा. तो जब सिखाना शुरू करेंगे तब टेस्ट करेंगे ना कि काम किया नहीं जी, छठी से तीसरी में लिया, मुझे क्या पता यार. मेरा तो मानना सिर्फ ये है कि मिसिंग है, होना चाहिए. बच्चे. हाँ जी हाँ, प्लीज पूछो जी. जो ये मतलब बोलते हैं कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा रोल है, और ये आपने जो बोला है ना कि कम्युनिकेशन नहीं होता है, ये 100% सही है. मैंने जितना भी जीवन जिया है. चलो फिर 100 की जगह 200 कर देना, कुछ सीखा भी तो है. नहीं, लेकिन इस पर एक और सवाल आ रहा है आगे. इंडिविजुअल हम इस पर कैसे काम कर सकते हैं? वी आर गुड कम्युनिकेटर्स, हम तो हर चीज बोल देते हैं, मुंह फट है. कम्युनिकेशन इज नॉट मुंह फट. कम्युनिकेशन इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट. कई बार आप हो सकता है कि एक भी वर्ड ना कहें एंड यू बीन एबल टू कम्युनिकेट, और कई बार है कि आप जी बोलते ही आए हो. फॉर एग्जाम्पल, लिसनिंग इज सच अ लार्ज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. हम जो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, कई बार हमें लगता है कि कम्युनिकेट हो गया. कम्युनिकेट नहीं हुआ, सिर्फ बोला गया. सुना आपने. अगर आप 5 मिनट बोल रही हैं तो क्या 10 मिनट सुन रही हैं? और अगर सुन नहीं रही हैं तो कम्युनिकेशन थोड़ी हुआ, खाली बोल रहे हैं. और हमें सिखाया ही गया जी मैं बड़ा अच्छा कम्युनिकेटर हूँ. कैसे? मैं देखो जी स्टेज पे कितना अच्छा बोलता हूँ. नहीं यार, वो तो बोलना है, वो तो पढ़ना है. कम्युनिकेशन इज महसूस करना. कम्युनिकेशन इज लिसनिंग आल्सो, है ना. तो बहुत सारी चीजें हैं, इस पे तो पूरा दिन निकाल सकते हैं. तो बस अभी तो इतना ही है कि कम्युनिकेट करते जाओ. कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ो ना. जब पूरा कम्युनिकेशन समझ में आने लगेगा तो आप उसको अप्लाई करो, आपको फर्क दिखने लगेगा. बिल्कुल बिल्कुल. सर, टाइम तो है लेकिन जाने का मन नहीं है. लेकिन उससे पहले वी वुड नॉट लाइक टू टेक मच मोर टाइम और एवरीबॉडी. हर किसी ने आपको नज़म बयां करते हुए सुने हैं. मुलाहिजा फरमाइए, इरशाद और आपके जो तरीका है. लेकिन आप गाते भी बहुत अच्छे हो. मैं गाता नहीं हूँ भाई. मैं गाता बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आपने एक गाना भी गाया था. यू हैड अ बैंड दैट यू एक्चुअली परफॉर्म्ड विद योर टीम. सो अगर 2 लाइन आप गुनगुना दोगे. उसकी वजह ये है, मैं आपको बताता हूँ. आई डू नॉट सिंग टू एंटरटेन. मतलब आप अगर अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और आप मेरी महफिल में आए तो यार तू बड़ा सुना, बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलता, 2 शॉट मार के दिखा. दैट्स अ लिटिल अनफेयर. You called me here, more as someone who has an opinion about something, not to showcase. वो कभी मेरे घर आप आएंगे, इत्तेफाकन मेरा मूड है, मैंने 2 ड्रिंक मैं गा सकता हूँ, but not because of this. No issues. But what I will do instead is probably end this महफिल
with another nazm, which is Sure, what I do absolutely. for a living, and let's finish that. मैं कुछ relationship के ऊपर ही करते हैं, और I think this one is also my favorite, which is called कोई ऐसा ढूंढो जिससे बात कर सको. I call this my favorite also because I believe कोई भी इंसान, दो लोग जब आपस में बात कर पाते हैं तो वो खाली बातचीत नहीं हो रही. It's a sign of many other things. It's a sign of trust. It's a sign of authenticity. It's a sign of companionship. It's a sign of shared values and shared companionship related item. तो अगर आप किसी से 7-8 घंटे लगातार बात कर सकते हैं तो वो आपका अच्छा दोस्त इसलिए खाली नहीं है कि आप बात कर सकते हैं, आप बात इसलिए कर सकते हैं कि ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं. Correct. जिसको आप ट्रस्ट नहीं करते, आप उससे मिनट भर बात नहीं कर सकते. True. जिसको आप जिस वैल्यू शेयर नहीं है तो आप बल्कि कहते हो चुप कर यार, I'd rather. तो इस पे आई थिंक वी शुड एंड दिस इवनिंग. मुलाहिजा फरमाइए, कोई ऐसा ढूंढो. इरशाद सर, इरशाद. ओके. सारे काले बाल सफेद हो जाएंगे, सारे काले बाल सफेद हो जाएंगे, घुटनों में दर्द होगा, ऐसे दिन भी आएंगे, साथ में सोने का ना बचेगा फायदा, बढ़ती उम्र वालों का है अपना कायदा. तब ये एक शख्स, द वन यू होपफुली फाउंड, तब ये एक शख्स कुछ कहानियां सुनाएगा, जो रोज सुबह गाते हो वो गीत गुनगुनाएगा. दोस्त बन के जिससे मुलाकात कर सको, दोस्त बन के जिससे मुलाकात कर सको, रात से सुबह, सुबह से रात कर सको. कोई ऐसा ढूंढो जिससे बात कर सको. पर एक छोटा सा टेस्ट जो मैं हमेशा कहता हूँ, अप्लाई करो. फर्ज करो दोनों एक कार में हो तुम, और कोई एक ऐसा मोड़ ले लो तुम जो वहां निकले जहां पे रास्ता ना हो. अब इस शख्स की हरकत पे करो गौर, अब इस शख्स की हरकत पे करो गौर. क्या ये तुम्हारे साथ ढूंढता है रास्ता या निकल जाता है जैसे ना हो कोई वास्ता? यू टर्न लेने की औकात कर सको, रात से सुबह, सुबह से रात कर सको. कोई ऐसा ढूंढो जिससे बात कर सको, और वो भी उतना पूरा हो जितने तुम पूरे, वो भी उतना पूरा हो जितने तुम पूरे. थोड़ा वो अधूरा हो, थोड़े तुम अधूरे, पूरे पूरे भी और आधे आधे भी. जब खुशी है सांझी तो गम हो सांझे भी, दो ही इतने हो कि एक बारात कर सको. रात से सुबह, सुबह से रात कर सको. और तुमको बदलने की वो फिराक में ना हो, तुमको बदलने की वो फिराक में ना हो, और खुद भी ना बदलेगा ये ऐलान किया हो. अच्छी रिलेशनशिप तब होती है when we are saying I will change when I want to change for you. You don't have the right to ask me to change. Correct. I will decide when I want to change. तो तुमको बदलने की वो फिराक में ना हो, और खुद भी ना बदलेगा ये ऐलान किया हो, और फिर चुपके से बदल जाए जहां पर जिंदगी कहे कि बदलना है जरूरी, और बदलकर तुम्हें महसूस भी ना हो कि बदल कर तुम पे एक एहसान किया हो, और खुद भी ना बदलेगा ये ऐलान किया हो. रोज बदलने की खुराफात कर सको. रोज जिसको ना लोग कहते हैं, oh, she's trying to change me, he's trying to change me, I'd like you to do this differently. We change when we love. Right. We automatically change when we love. But when somebody pushes us, that's the time हम खड़े हो जाते हैं. You resist. मैं तो तुम्हें कहा था मैं ऐसा ही हूँ. Correct. मैं तो कहा था मैं ऐसी हूँ. And accept me as I am. वो नहीं होता ना. And naturally when you come together, you will change. But the change has to come out of a need to adapt to who you love. Not out of a need कि इसको जी मैं पसंद नहीं तो जा फिर घूम क्या. तो रोज बदलने की खुराफात कर सको, दोस्त बन के जिससे मुलाकात कर सको, कोई ऐसा ढूंढो जिससे बात कर सको. बहुत बहुत शुक्रिया. क्या बात है. Thank you so much, sir. We already shot up by 9 minutes, but before we let you go, if you have few kind words that would like to. Oh, we have Ankita Singh join. Ankita, it's your birthday today. Oh, Ankita, happy birthday, Ankita. Dr. Ankita Singh is my Glip Talk 2.8 guest. Ankita, wow. wish you a very happy birthday. Happy birthday, Ankita. Thank you so much. I'm so sorry I am late. Didn't want to miss this. अभी join किया? जी बस अभी पर लास्ट वाला सुन लिया fortunately. फिर तो आपने बिल्कुल एंड में join किया. Anyway, welcome and happy birthday again. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Ankita, for joining. So, and my friend Sharabni is also here. Hello, Sharabni. Good to see you. Yeah, okay. A lot of them there. So, sir, जाने से पहले अगर आपकी कुछ मतलब शब्द, कुछ some good wishes for Glip Talk as an initiative. I know I had to really chase you for over a month to get you today because you were busy, you were on a road trip, you were traveling, you had loads of commitment. But finally you said yes, so I don't have words even to say thank you more. बहुत शुक्रिया. I think it is important to create forums where open conversations can happen. And I think you're doing a good job by getting like-minded people together. जितने खुलेपन से हमारे society में बात होगी, उतना we'll be able to take it home. And I think you're doing a great job in it. So my congratulations to both to you, Samrat, and to Glip Talk and everyone else who's joined us today.
Thank you so much once again, everyone. Happy Valentine's Day. Enjoy your evening. Next week, we shall see you with another guest, a wonderful one, at 5 o'clock sharp in the evening. Till then, take care. Shabak hai. Happy Valentine's Day, ladies Happy and Valentine's. gentlemen. Take care, everyone. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye, guys.